ঠিক আছে गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया। सबको मीडिया फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। आज हमारा यहाँ में एक स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस है टू अनाउंस ज्वाइनिंग। आज वो ऑफिशियली तिपरा मोहता पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। विथ मी ऑल्सो इज द प्रेसिडेंट ऑफ तिपरा मोहता विजय कुमार रांखौल। यहाँ में हमारे EM हैं फ्रॉम रायमा वैली राजेश त्रिपुरा, MDCs श्री रविंद्र देवर्मा, रुनिल देवर्मा, अंशु कुमार त्रिपुरा एंड हमारे वुमेन प्रेसिडेंट भी है यहाँ में गणेश देवर्मा, और हमारे वुमेन TWF के न्यूली अपॉइंटेड वुमेन प्रेसिडेंट सपना देवर्मा भी यहाँ में है। मीडिया फ्रेंड्स, आपको सबको मालूम होगा कि कल धनंजय त्रिपुरा ने अपना इस्तीफा दिया था ऑनरेबल स्पीकर को, और फॉर्मेलिटीज क्लियर होने के बाद आज ऑफिशियली धनंजय त्रिपुरा हैज जॉइन तिपरा मोहता। वी वेलकम हिम टू द फैमिली ऑफ तिपरा मोहता। वेलकम भाई तमाम लम्सोगो धनंजय, हम इनको स्वागत करते हैं। एंड आई नाउ लीव द फ्लोर टू धनंजय त्रिपुरा टू give a few words to all of you all. इसके बाद you can ask any question. We will be happy and most welcome to give you the answers. हम भाई ধন্যবাদ সবাইকে। আপনারা জানেন আমি 2018 কোয়ালিশন গভর্নমেন্টে রায়মা ভ্যালি থেকে নির্বাচিত হয়েছিল, এবং আমি IPP 2014 থেকে এটা আমার প্রথম আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার ছিল আমাদের IPP-তে। কারণ দীর্ঘ 8 বছর ধরে আমি একটা আঞ্চলিক দল IPP-র সঙ্গে জড়িত ছিল। আজকে গতকালকে আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে আমাদের ভূভাগরা সকল অংশের মানুষকে নিয়ে আজকে, যেহেতু ভূভাগরা সবাইকে ডাক দিয়েছে এসে তিপ্রাসা, আমি একজন তিপ্রাসা হয়ে মহারাজা আমাদের জন্য যে মাঠে নেমেছে, আমাদের জন্য লড়াই করছে, আমি ব্যক্তিগত এই পরিস্থিতিতে মহারাজার সহযোগিতা করা এবং মহারাজাদের কাছে এবং মহারাজার সংগঠনে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন তিপ্রাসার উন্নয়নের জন্য লড়াই সংগ্রাম করে ময়দান নেমেছে আমরা সবাই। আমি এই মুহূর্তে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল থাকতেই পারে, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলতেই পারে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মহারাজাকে সহযোগ এবং মহারাজার হাতে হাত মিলে আমরা কাজ করার জন্য আমি প্রস্তুতি নিয়েছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আজকে আমার সাথে আমাদের রায়মা ভ্যালির নেতৃত্ব রয়েছেন এবং কমসে কম 100 জনের লিডার রয়েছেন আজকে, এবং আগামী দিনে আসবে, এবং আগামী দিনে বিভিন্ন দল থেকে আসবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসবে, শুধু IPP নয়। আমি শুধু রায়মা ভ্যালি থেকে নয়, আগামী অন্যান্য লংতরাই ভ্যালি থেকেও, পর্ব থেকেও, MP থেকেও, কয়েকটা জায়গা থেকে বিভিন্ন দল থেকে আমরা IPP এবং বিভিন্ন লিডাররা আমার সঙ্গে জড়িত রয়েছে, এবং বিভিন্ন MLA-রাও রয়েছে। তারাও আমাদের মহারাজার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মহারাজের যে আইডিওলজি, মহারাজের যে মিশন থাকবো এবং সহযোগিতা করবো। হাতে হাত মুক্তি দেওয়ার মতো আর কোনো আমি মনে হয় না। বিভিন্ন লিডাররা আছে, বিভিন্ন আইডিওলজি নিয়ে কাজ করে, কিন্তু প্রকৃত লিডার, আমরা প্রকৃত লিডার দরকার।
I-50 হয়তো বা 2009 থেকে দীর্ঘ বছর ধরে সন্দেহ আছে। আর বর্তমান মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নামছে, আমরা সবাই এই যে ত্রিপুরাসা হিসেবে আমরা এই মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে ডাক আমরা সিদ্ধান্ত নিতে MLA অস্থায়ী পোস্ট এজ এ ত্রিপুরাসা আমি দফায় সব থেকে বড়, সেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি MLA 5 বছর জন্য এবং দফায় 7 বছর জন্য। সেই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আগামী দিনে আর কিছু লিডার আসবে, আপনারা দেখবেন। ধন্যবাদ। Any questions that you have? अगर कोई सवाल है? सर मेरे एक सवाल था 2018 का जो इलेक्शन है तब से आप लोग टिप्रालैंड को लेकर IPFT बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया 4.5 साल में जो टिप्रालैंड का जो प्लान था आपका वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया? एक्चुअली आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा IPFT गलत किया विदाउट डिटेल। ये आप लोग जानते हैं ये IPFT का सबसे ज़्यादा यूथ लोग ने काम किया है 2016, 17, 18 जो त्रिपुरा में सरकार आया था उसका हाथ यूथ IPFT का होता है। उसके बाद आज 4 साल में आप लोग देखा है त्रिपुरा स्टेट में क्या हुआ। आज मैं कंपेयर जो घर में विदाउट गार्जियन तो उस घर में कितने दिन रहेंगे वो सोचने का बात है। इसलिए मैं अभी महाराजा जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो सबके लिए जो इसलिए त्रिपुरासा के लिए जो अभी फाइट कर रहे हैं, हम लोग ऐसे त्रिपुरासा अभी महाराजा के साथ हैं, इसलिए मैं अभी महाराजा के साथ में आया हूँ इसको। तो आप लोग जब IPFT में थे, जब 4.5 साल तक टिप्रालैंड के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो बीजेपी वालों ने आपका साथ नहीं दिया था इसके रिगार्डिंग? आप लोग ने देखा है आफ्टर इलेक्शन असेंबली में मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ और एक्स MLA विशु की भी बहुत बार कोशिश किया है। मेरे एक क्वेश्चन भी है, मैंने त्रिपुरालैंड के लिए क्वेश्चन भी किया, वो भी कैंसिल हुआ। आप लोग जानते हैं मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ क्योंकि जिस घर में गार्जियन नहीं है उस घर में तो उस घर में इतना दिन नहीं आप लोग देखा है ये, और मैं बोलने का कोई जरूरत भी नहीं, सब लोग जानते हैं। जिस डिमांड को लेके आप लोग आए थे এনসি বাবু তো রয়েছে, এখন আপনি একটু আগে বললেন যে আপনারা করলে ও এইভাবে রয়েছে, এনসি বাবু তো রয়েছে, ওনার প্রতি কি আশা আছে আজ পর্যন্ত? আপনারা জানেন আমাদের NC দেববর্মা আমি শ্রদ্ধা করি সিনিয়র লোক, সেটি ওখানে অসুস্থ যদি একজন ফাউন্ডার অফ IPFT এবং যে গার্জেন তাই যদি অসুস্থ তো ওই গার্জেন ওই গড কীভাবে করে বুঝছেন? धनंजय, जिस डिमांड को लेके IPFT पॉपुलर हुआ था टिप्रालैंड का, उसको आप लोग फुलफिल क्यों नहीं कर पाए 4.5 साल में? अब एक बार भी आप लोगों ने असेंबली में उठाया नहीं, एक MLA के सिवा आपने भी कभी उठाते हुए नहीं? मैंने बोला था मैंने क्वेश्चन भी किया था, मेरा क्वेश्चन कैंसिल भी हुआ, मैं वो उसका प्रूफ भी है मेरे पास जो मैंने क्वेश्चन किया है। तो हम लोग ने बहुत बार ट्राई किया है, ये नहीं कि MLA लोग जो जिस डिमांड को लेके हम लोग जिस मुद्दा को लेके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं उस मुद्दा को हम लोग कभी रेस नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत बार कोशिश किया असेंबली में क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी ने क्लियर बोला है कि वी डोंट सपोर्ट टिप्रालैंड डिमांड, बट ट्राइबल लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं और उन्होंने इवन निर्मला सीतारमन ने एक पैकेज डिक्लेयर किया है 1300 करोड़ का, अलग पैकेज वो लोग बोल रहे हैं। आप लोग कितने इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? लेकिन हम ये पैकेज वाला ये नाम बोलने से अच्छा है, पैकेज लेके हम लोग त्रिपुरा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। हम लोग मुक्ति चाहिए तो ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए। मेन मुद्दा महाराजा जितना भी हम लोग के लिए जो काम कर रहे हैं हम लोग को, इसलिए हम लोग अभी त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड अभी महाराजा है गार्जियन हमारा, जिस गार्जियन को विश्वास करके हम लोग ने फाइट किया है
उस घर में अभी कमजोर हुआ, उस घर अभी विदाउट गार्जियन अभी घर हुआ है। तो वो एक तो घर पार्टी चाहिए। का अलग बात हुआ, गार्डियनलेस, पर फाइनेंशियल बेनिफिट के सिवा कैसे डेवलप? आप देखें 4 साल में वो जो विप्रो में कितना डेवलप हुआ, ये तो मैं अलग से बोलने का जरूरत नहीं है। स्पेशली एडीसी एरिया में अब क्यों अगरतला में स्मार्ट सिटी होता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होता है, तो एडीसी में क्यों नहीं? एडीसी में कुमिलों में करो स्मार्ट सिटी, वाई नॉट? Do you feel the development has not happened in the tribal areas under BJP 1? आपको रहेगा नहीं। क्या आपको लगता है कि भाजपा के सरकार के जमाने में आपके पूर्वी पार्टी आईपीएफटी में एक पार्टनर था, तो भाजपा आईपीएफटी की सरकार में ट्राइबल के डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? एक दूसरा सवाल सर, कि जब आपने बोला अभी कि विदाउट गार्डियन है आईपीएफटी, तो हाल ही में एक मसला सामने आया था कि आपके पूर्वी पार्टी के एक लीडर प्रेसिडेंट चुने गए थे, उसके बाद आपके फाउंडर लीडर केम बैक एंड सेड आई एम द वैलिड प्रेसिडेंट, उसमें काफी चर्चा भी हुआ था। तो क्या आपको लगता है ये जो इंटरनल टेक ओवर ऑफ लीडरशिप था आईपीएफटी में, क्या ये कहीं पे रिस्पॉन्सिबल रहा होगा कि आपका आईपीएफटी गार्डियन लिस्ट हो गया, आपको लग रहा है क्या उसमें कुछ वेरिएबल्स रहा होगा? देखिए आप लोग मीडिया वालों के, आप लोग के पास सब लोगों की खबर है, कौन कहाँ क्या कर रहे हैं, कौन से लीडर क्या हुआ, आप लोग के पास सब खबर है। मैं एक्स्ट्रा बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो अभी त्रिपुरा में जो सरकार के जो डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं, स्पेशल आप बोलो ना एडीसी में क्यों 5,000 करोड़ भेजो? लास्ट बजट सीजन में 26,000 करोड़ बजट किया है, तो एडीसी में कितना करोड़ दिया? तो इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, यहाँ इक्वल होना चाहिए, राइट में इक्वल है, सबको इक्वल के देखो, डेमोक्रेसी सबके समान है, सबके राइट है। आप अगरतला में 1,000 करोड़ आप बजट कर सकते हैं, एडीसी कुमिलों में करो। आप अगरतला में स्मार्ट सिटी आप कर सकते हैं, कुमिलों में करो। एक डेमोक्रेसी कंट्री में सबके समान होना चाहिए, डेवलपमेंट सबके लिए होना चाहिए। तो डेवलपमेंट से नहीं होगा। हम लोग त्रिपुरा सर का जो आइडेंटिटी कहा, वो उसके बारे में गवर्नमेंट भी सोचना चाहिए। Government should think about the identity of the. और कोई सवाल होगा क्या? और कोई? पहले 2023 में टिकट निकले जाते हैं। नहीं, इसका क्वेश्चन का सवाल मैं नहीं कर रहा। जब कोई तिपरासा मोथा में ज्वाइन करता है तो कंडीशन टिकट ज्वाइन नहीं करता। अगर कोई टिकट के लिए आ रहा है तो वो पहले से यहाँ में हमारे फॉर्मर लीडर ऑपोजिशन अक्षय कुमार त्रिपुरा है, ही ज्वाइन। इन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे टिकट दो तभी मैं तिपरा मोथा में आऊँ। धनंजय आया है, ही इज नॉट सेड कि मुझे टिकट दो मैं तिपरा मोथा में आऊँ। जब ऋषिकेतु आज से 2 साल पहले आया, उन्होंने कुछ कंडीशन नहीं रखा। ये नॉन अनकंडीशनल है। पब्लिक भी जानती है कि कौन टिकट के लिए आता है और कौन दफा के लिए काम करने के लिए आता है। तो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन, प्रेसिडेंट ऑफ आई एम द चेयरमैन, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। नीदर धनंजय, नो हंस, नो ऋषिकेतु ने कभी भी अपना टिकट के लिए निगोशिएट करके त्रिपुरा मोथा में आया। दे हैव कम बिकॉज दे वांटेड टू सर्व द तोहफा और किसी के लिए आया, वरना इलेक्शन के 3 महीने बाद आता, इलेक्शन के 1 महीने पहले। वो क्या चुनाव को लड़ना ही है, तो एलिजिबल कैंडिडेट किसको आप चुनेंगे? आप ही लड़ लीजिए, अगर आप काम करेंगे आपको भी टिकट। ये इलेक्शन कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, ये 5, 20, 25 कैंडिडेट का लिए इलेक्शन नहीं होगा। ये इलेक्शन होगा 13 लाख तिपरासा का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए। अगर आपको कैंडिडेट रखना है, मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, ये कैंडिडेट का फाइट नहीं है, ये फाइट है फॉर सेफ गार्डिंग आर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। तो ये बात क्लियर है। आप अगर इसको सिर्फ ये 2018, 2013, 2008 जैसा इलेक्शन नहीं है, ये एक अलग इलेक्शन है। इसमें हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तिपरासा उसी को वोट, तिपरा मोथा को क्यों वोट करेगा? क्योंकि तिपरा मोथा पार्टी से पहले कम्युनिटी का वेलफेयर को आगे रख रहा है। अगर हम लीडर को सामने रखेंगे तो फिर बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं जो आज तिपरा मोथा में नहीं है,
लेकिन अपने एरिया में जीरो है, क्योंकि पब्लिक को कुछ चाहिए, पब्लिक डिमांड समथिंग। तीसरा पीपल का कोई डिमांड है, उसी को आगे रख रहे हैं हम लोग। और उसके बाद जो कैंडिडेट का बात है वो लास्ट में डिसाइड किया जाएगा। हम लोग इंटरनली प्रेसिडेंट आई एम देयर, हम लोग का एक सिस्टम है, हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे। अभी हमको अपना एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करना है फॉर ग्रेटर पीपल। अच्छा एमएलए बाबा फाइने सालो देबो एमएलए रो फाइने कक कुमार को तो अब जरा फाइकेनो ना যোগাযোগ খাইতো বিভিন্ন দলের ফাইনে গণতান্ত্রিক ফাইতো যদি মহারাজা যেহেতু তিনি গার্জেন যতন খবর তো অজরাবা जों एज ए दिप्रासा हिसाबै जों तामो साबो ताम थायावबो नायावै प्रश्न तर्जायबो तामो जराबो তিনি মহারাজাनि যে গ্রেটার दिप्रासानि যে যতन खबर मुङो जों फाइनाय এবং ফাইনাল আগামী দিনে আবার এবং বিভিন্ন নেতারা যোগাযোগ করে। I think our president would like to say something, please. যতন কাম থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে আমাদের গৌরবের দিন। মাননীয় ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সিটিং এমএলএ সব কিছু উনি ত্যাগ করেন এবং ত্রিপুরা আমাদের চেয়ারম্যান মহারাজ চতুর্থীর আহ্বানে করে উনি আসছেন। ওনাকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি ধন্যবাদ দিই এবং ওয়েলকাম করি। ওনাদের যদি হংসবাবু আছেন, ওনাদের বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অধিকাংশ এমএলএ তারা ফ্রাস্ট্রেটেড। হেডলেস ট্রেন, ইঞ্জিনবিহীন ট্রেন চলতেছে, এরকম একটা শুনতেছি, মানে গার্জেন নেই ওনাদের বক্তব্য। এতে আমরা মনে করতেছি যে বিপ্রমথা একটা সংস্থা যেটা আমাদের পুরো ত্রিপুরার জনসাধারণের शेड्यूल ट्राइब हो, नॉन शेड्यूल ट्राइब हो, যে কোনো কমিউনিটির পক্ষে আমরা বক্তব্য রাখি। এবং ত্রিপুরা, গ্রেটার ত্রিপুরা মানে ত্রিপুরার মধ্যে উইদিন স্টেট এটার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন জনসাধারণের যে প্রয়োজন এইগুলি আমরা অ্যাড্রেস করার আমাদের ভিশন আছে। যে যতদূর সরকার এবং বর্তমান যে সরকার আছে বিজেপি এবং আইপিএফটি, তাদের যে বক্তব্য তারা কতদূর এগুলি করতেছে আপনারা জানেন। আমি আমার নজর নাই, কিন্তু সবারই পক্ষে যে বক্তব্য যে তারা কিছুই করার তারা আর সময় নাই। এবং তারা বলবে আমরা আরও 5 বছর সুযোগেও আমরা করছি, বিগত 5 বছর কিছু করেন না। এটা আমি বলতেছি এরকম নয়, কিন্তু যারা এমএলএ আছেন, যারা মন্ত্রী আছেন, তাদের নিজস্ব বক্তব্য আমরা বুঝতে পারি যে তাদের গভর্নমেন্টের ইঞ্জিনলেস ট্রেন, মানে ইঞ্জিন নাই এরকম একটা ট্রেন তারা চলতেছে। ওনারা প্রশ্ন আনসার বিধানসভা on the floor of the house, but their questions have been rejected. They are unable to bring their questions on the floor of the house for the interest of the people. And we also have been in the assembly, and we tried our level best to bring the issue of the public. So today also, as our chairman has already said, we are very much united in the organization, so that we can achieve something for the people through our greater people and demand. So therefore today we are grateful, we are happy, we welcome our honorable members, those who come from the assembly and from the public position also, and we believe according to them, and we should be able to manage the greater Tripura in the state, in the field of
peace and tranquility also. That people may feel everybody is my brother, everybody is my sister. We work like that. We go everywhere, accepting some politician trying to humanize and give us some wrong color of communion. But we are never communion. It is the propaganda of the communist people also. So we are never communion. So today EFT in Surma, not only in Surma, in different places, you can have a look and talk to the public. They will witness it, saying that no tea promoter is never communal. It is for everyone. We want to work with everybody, and we have to see that our deprived population, there are different minority group in the state also. We should think for them also. Therefore, one of our honorable MLA, he resigned today after he has been influenced by our chairman, Honorable Brother Kishore Maliko, and after he made an appeal, it was reached to his heart also. It will be reaching to different hearts of the people. And we believe in days to come, we will be able to stand on our own foot with your cooperation. And you will be publicizing our approach, our mindset for the state. Thank you. I just want to say one thing. एक बात before. Thank you, friends. आपने इतना समय लिया है. I know you will also have other press conferences to attend to. ये एक प्रोपेगेंडा है, एक बहुत malicious प्रोपेगेंडा है कि हम लोग कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ हैं. सबसे पहले let me assure and tell everyone, we want the development of all communities in Tripura. अगर ADC में डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो सच्चाई है, लेकिन ये और एक सच्चाई है कि ADC के बाहर भी बहुत लोगों को डेवलपमेंट नहीं मिला है. आज आप 10,323 टीचर्स के बारे में जब हम लोग फाइट करते हैं तो वो सिर्फ तिपरासा नहीं, उसमें मणिपुरीज हैं, बंगालीज हैं, मुस्लिम्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं. जब हम लोग सुरमा से फाइट करते हैं तो एक हिंदुस्तानी चा बागान वर्कर को हमने जब सीट दिया, वो तिपरासा नहीं है. हम मणिपुरी, बिष्णुपुरिया से बात कर रहे हैं, मैतेई से बात कर रहे हैं. SC कम्युनिटीज़ में बहुत बंगाली लीडर्स हैं जिनको डिनाई किया गया है, बहुत फेक SC सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो हाँ, एक बात है कि मैं आपको डिनाई नहीं करूँगा कि इससे पहले रीजनल पार्टीज थे जिन्होंने एक बहुत हार्ड लाइन अप्रोच लिया था. लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ. आई एम फ्रॉम अ फैमिली विच इज़ गिवन पेट्रनेज टू द ग्रेट नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस. हमने कंचन प्रभा देवी ने शरणार्थियों को हेल्प किया, मेरे फादर ने हेल्प किया. 71 यूथ में यहाँ में पैलेस के सामने हमने हेल्प किया. तो हम लोगों का फैमिली हमने कभी भी कम्युनल आउटलुक नहीं दिया. लेकिन आज दरकार है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार अपने तिपरासा के बारे में बात करें. लेकिन मैं इसका भी आई एम ऑल्सो अवेयर दैट देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आउटसाइड ADC एरियाज. अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम. जब बिजली नहीं आता है तो सबको अफेक्ट करता है. रोड अगर हमारे वहाँ में नहीं है तो अगरतला के बाहर भी कोई खास अच्छा रोड नहीं है. स्कूल एजुकेशन सिस्टम, अगर हमने कहा है कि कॉकबोरॉक शुड बी स्पोकन, क्योंकि हम चाहते हैं इट इज नॉट फॉर रिलीजियस पर्पस, इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस. अगर आज हमारा बच्चा इंग्लिश और हिंदी सीखेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में अच्छा मिलेगा. तो इसी के लिए हमने ये डिमांड्स उठाया है. हमेशा हमारा आज मुस्लिम को टारगेट करके हिंदू का पेट नहीं भर रहा है. आज क्रिश्चियन को टारगेट करके बुद्धिस्ट का पेट नहीं भर रहा है. तो आने वाले दिन में क्या हम त्रिपुरा को क्या देखना चाहते हैं? वी वांट डेवलपमेंट फॉर ऑल. अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए. अगर रास्ता अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए. हेल्थ केयर में इतने लोग, आज से 2 दिन पहले हमारे चिन्मय कोलॉय अम्बासा के ब्लॉक प्रेसिडेंट का डेथ हुआ. जॉन्डिस, मलेरिया, उसके बाद हेपेटाइटिस.
ठीक जब तक जीबी हॉस्पिटल तक वो पहुंचा 4-5 घंटे में उनका देहांत हो गया। जब इतने मतलब कि हेल्थ केयर सिस्टम इतना खराब है इस स्टेट में, तो इसका सजेशन में डेवलपमेंट तो होना चाहिए। आज पॉलिटिकल पार्टी, आज त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर का बात, लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? बाहर से लोग आके इन्वेस्ट क्यों करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर इज प्राइमरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये सब इश्यूज है, इसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, बाइबल है, उपनिषद है, वेदास है, कुरान है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हमारा फैमिली का एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए। वी आर नॉट लाइक दैट। वी आर पीपल हु अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द हिंदू बंगालीज इन ईस्ट पाकिस्तान, and we feel that justice should be given to them, and we want justice to be given, but we also deserve some justice, we also deserve some right. And मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, इसके लिए मैंने कहा कि निगोसिएशन या बात हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ बोलेंगे कि ये लोकल प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व करो, ये कभी सॉल्व नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी बनता है हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन अपने बलबूते में फाइट करेंगे। धनंजय हैज जॉइंड आवर पार्टी, वी वेलकम हिम। दूसरे पार्टी से भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक बात क्लियर होना चाहिए, आप टिकट के लिए आएंगे तो ये नेगोशिएशन नहीं होगा। अगर आप दफा के लिए आएंगे तो हाँ, हम बात करके बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। एंड आई अपील टू द मीडिया वंस अगेन, प्लीज, ये पूजा भी खत्म हुआ है, आने वाले दिन में आज कल तक मालूम होगा कि विलेज काउंसिल इलेक्शन का डेट क्या है। प्लीज आई अपील कि त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए शांति से बैठ के होना चाहिए। त्रिपुरा में अगर वायलेंस हुआ तो रियल इशू को कोई बात नहीं करेगा। डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा होना चाहिए। तो मैं मीडिया से अपील करता हूं कि प्लीज इसको भी आप सामने रखें। एंड जो 5-10 लोगों का एक पूरा षड्यंत्र है कि इसको त्रिपुरा सा बंगाली बनाए, ये घिसा पिटा हुआ पॉलिटिक्स ने त्रिपुरा को बर्बाद किया है। आज त्रिपुरा सा को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए और बंगाली को भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए। मुझे लगता है दोनों को ये मिल सकता है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये मिल सकता है। बस बेलाई नोहाम भाई, धन्यवाद, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको। महाराज, आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि प्रॉब्लम वाज प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे हैव टू प्रोवाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, इज देयर ड्यूटी, or else we shall fight the elections on our own mind. If there is a solution given the government of India, it has to be in writing. Mr. Dhananjay said, high powered committee बना था 2018 में। आज फिर से अगर I end up going to Delhi doing this और कोई हाई पावर्ड कमेटी बन जाता है और उसमें कुछ लिखा नहीं गया है तो फिर से धोखा होगा। हमें जो भी चाहिए राइटिंग में चाहिए, एक क्लियर। देखिए, आदमी लोगों को अब विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया, एंड मैं जुमला में विश्वास नहीं करता। अगर आपको कुछ देना है तो वर्बली नहीं होगा, राइटिंग में होगा, और ये राइटिंग में पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए, मीडिया के नॉलेज में होना चाहिए। वरना ये जैसे 2018 में हुआ, ये 2023 में हम रिपीट नहीं करने देंगे। दैट्स वेरी क्लियर। एक हाई पावर कमेटी ऑलरेडी बना है, कमेटी से नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री इज द ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू invite and discuss about our demand in writing for Greater Tripura land. Government of India, let Government of India invite us. Let's talk as respectable people. We are not underground group. We are not ISI backed Pakistan, Hizbul Mujahideen. Hizbul Mujahideen से भी Government of India ने बात किया है। हम तो हिजबुल मुजाहिदीन नहीं है।
वी आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड. आई हैव ऑल्सो सेड दैट सिर्फ मुझसे बात करने से नहीं होगा. यहाँ में काउंसिल ऑफ तिपरासा हौदाज है, समाजपति है, हौदा जमातिया है, क्षत्रिय समाज है, चुगलाई बुथू है, कास्काओ है, हमारा कलौय समाज है. उनको भी आप बुलाइए, उनको भी स्टेक होल्डर्स बनाइए, सिविल सोसाइटी को भी स्टेक होल्डर्स बनाइए. और आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात मत कीजिए, पूरा समाज से बात कीजिए. जैसे नागालैंड में नागा हो से बात हो रहा है. ये सॉरी, ये बात मैंने मेंशन नहीं किया था. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप सबको इनवाइट कीजिए एक डायलॉग के लिए, और ये डायलॉग को सिर्फ इलेक्शन के नजरिए से मत देखिए. एक फाइनल सोल्यूशन, वी वांट अ फाइनल सोल्यूशन. और सोल्यूशन कभी नहीं होगा अगर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात करें. कम्युनिटीज को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमारे रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व कीजिए, हमारे हौदास को, ओक्रास को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमें भी इन्वॉल्व कीजिए, और हम लोग सब बैठकर बात करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे. अगर ये नहीं होगा, अगर आप डिवाइड एंड रूल करेंगे, तो आई एम सॉरी. आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, आई रिस्पेक्ट Prime Minister Narendra Modi ji, I respect Rahul Gandhi ji, I respect Sitaram Yechuri ji, but I love my people and I cannot mislead or betray them by compromising and not assuring them for what we started. I think it is very clear. It's a sincere demand. I don't know how long will we be able to continue this. I am not well, but till the time I am around, I am not in a mood to cheat my people. मुझे अच्छा नाम चाहिए, मुझे अच्छा पैसा नहीं चाहिए, मुझे अच्छा कुछ सोल्यूशन चाहिए. एंड आई वांट द तिपरासा पीपल, द बंगाली पीपल, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द बुद्धिस्ट, द क्रिश्चियंस टू लिव पीसफुली बट डिग्निफाइड एंड विद आवर राइट्स. दैट्स ऑल. थैंक यू. स्वीकार करने की बात की, अगर सेंटर ने नहीं दिया तो क्या करेंगे? नहीं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नागरिक को झूठ बोलेगी राइटिंग के बाद, तो देखिए राइटिंग के बाद तो गवर्नमेंट त्रिपुरा में जो इलेक्शन के समय में हाई पावर्ड कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है. जब मैंने होम मिनिस्ट्री का बात किया, अगर होम मिनिस्ट्री ये अश्योरेंस देता है, दे कैन नॉट बैक डाउन. और टाइम फ्रेम के अंदर भी होना चाहिए. सिर्फ कि हम दे देंगे और उसके बाद चलते रहा, टाइम फ्रेम होना चाहिए. जब ये नेगोशिएशन होता है देन मेनी चीज निकलता है. हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि हम लोग जुमला में फंस जाएंगे. आई थिंक जो 2018 में हुआ वो धोखा था, क्योंकि वो ठीक लाइन से नहीं गया. हम लोग वैसे ट्रैप में, जाल में नहीं फंसे. थैंक यू. थैंक यू. कुछ खाइए खाना.